ناظرین آداب، تلنگانہ ایکسپریس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ خبروں کے آغاز پر پیش ہیں سرخیاں۔ سرخیوں کے پیش کردہ ہیں مخدوم برادرز، پتھر گٹی چار مینار روڈ حیدرآباد۔ مخدوم برادرز، پتھر گٹی چار مینار روڈ حیدرآباد۔ روپیوں کی قدر میں کیوں آئی گراوٹ؟ مودی دے جواب۔ تلنگانہ کے ریاستی وزیر کے ٹی آر کے ٹویٹر پر وزیر اعظم مودی کو سوالات کی بوچھاڑ۔ اگر بی جے پی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو عوام ہی اس پارٹی کو بدل دیں گے۔ دلت بندھو اسکیم کے تحت گاڑیوں کی تقسیم پروگرام سے ریاستی وزیر جگدیش ریڈی کا بیان۔ حکومت تلنگانہ قدیم تعمیرات کی سابقہ عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے عہد کی پابند۔ بنسی لال پیٹ کی تاریخی باولی کے ترقیاتی کاموں کے معائنے کے بعد ریاستی وزیر سرینواس یادو کا خطاب۔ چیئرمین تلنگانہ قانون ساز کونسل سکھیندر ریڈی کے قافلے حادثے کا شکار، 5 کاریں آپس میں ٹکرا گئی، کونسل چیئرمین حادثے میں محفوظ۔ رکن تلنگانہ قانون ساز کونسل کے کویتا امریکہ کے دورے میں مصروف۔ کویتا نے امریکہ تیلگو ایسوسی ایشن کی کانگریس میں تلنگانہ پویلین کا کیا افتتاح۔ تلنگانہ میں بعض مقامات پر آئندہ 3 دنوں کے دوران بارش کا امکان، محکمہ موسمیات نے یلو الرٹ کیا جاری۔ راہل نارویکر مہاراشٹر اسمبلی کے اسپیکر منتخب۔ اسپیکر کے انتخاب میں 12 اراکین غیر حاضر، 3 نئے ووٹ دینے سے کیا گریز۔ ارجنٹائنا میں شدید معاشی بحران، وزیر خزانہ نے اپنے عہدے سے دیا استعفیٰ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے وزیر آئی ٹی و بلدی نظم و نسق کارگزار صدر ٹی آر ایس کے تارک راما راؤ نے بی جے پی کی قومی عاملہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے حیدرآباد آئے وزیر اعظم نریندر مودی سے سوالات کیے۔ انہوں نے انہیں چیلنج کیا کہ یہاں سے جانے سے پہلے جواب دیں کہ یقین دہانیوں کا کیا ہوا۔ ان تناظر میں ریاستی وزیر کے ٹی آر نے اپنے ٹویٹر پر سوالات کی بوچھار کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی سے جواب طلب کیا۔ واضح ہے کہ حال ہی میں ریاستی وزیر کے ٹی آر نے مودی مسٹ آنسر ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹویٹ کیا۔ میرا مودی جی سے سیدھا سوال ہے کہ ہندوستان روپے کے گرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس سوال کا کوئی جواب ہے کہ بی جے پی سے تعلق رکھنے والے کسی کے پاس بھی اس سوال کا جواب ہے؟ اس پر سوال کرتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا۔ وزیر برقی جگدیش ریڈی نے کہا کہ اگر بی جے پی میں تبدیلی نہیں آئی تو عوام ہی بی جے پی کو بدل دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے عمل میں ہر 5 سال بعد آنے والے انتخابات عوام کی امنگوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس دن عوام کی امنگوں کے مطابق گورننس نہیں دی گئی اس دن الیکشن ہی تبدیلی لائے گا۔ ریاستی وزیر جگدیش ریڈی نے ضلع نلگنڈا کے نارائن پور منڈل کے گڈی ملکا پورم، چمبرال اور منگڑو منڈل کے زمستان پلی میں دلت بندھو اسکیم کے تحت منظور شدہ 10 کروڑ مالیاتی گاڑیاں استفادہ کنندگان میں تقسیم کیے۔ اس کے علاوہ اس موقع پر ریاستی وزیر جگدیش ریڈی نے کلیان لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے تحت منظور شدہ چیکس کو بھی استفادہ کنندگان کے حوالے کیے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے کہا کہ مودی کے لگاتار 8 سال کے دور میں تباہی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ کمل ناتھ عوام کی امنگوں کے مطابق ایجنڈا بنانے کی تجویز سے کانپ رہے ہیں۔ وزیر افزائش مویشیات ٹی سرینواس یادو نے کہا کہ بنسی لال پیٹ میں واقع قدیم تاریخی سیڑھیوں والی باولی کو سیاحتی مرکز میں تبدیل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بنسی لال پیٹ ایک سیاحتی مرکز کے طور پر قدم بڑھا رہا ہے۔ ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے آج اسپیشل چیف سیکریٹری میونسپل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ اروند کمار کے ہمراہ حلقہ اسمبلی صنعت نگر کے بنسی لال پیٹ کا دورہ کر کے قدیم سیڑھیوں والی باولی پر کیے جا رہے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔
इस मौके पर बात करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह किया कि बंसीलाल पेट में वाक़ कदीम सीढ़ियों वाली बाउली को अमृतसर में वाक़ गुरुद्वारा सीढ़ियों वाली बाउली के मुमासिल तरक्की देते हुए खूबसूरत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KTR की हिदायत के मुताबिक हुकूमत कदीम तामीरात की साबिक़ अज़मत रफ्ता को बहाल करने के लिए सख्त मेहनत करेगी। उन्होंने कहा कि कुएं के आसपास के तमाम घरों को नल कनेक्शन फराहम किया जाएगा, सड़कें बनाई जाएंगी और कुएं के आसपास की तमाम इमारतों को इसी तरह पेंट किया जाएगा ताकि सयाहों को राग़िब किया जा सके। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी का हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक काउंसिल चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी का काफिला जो हैदराबाद से नलगुंडा की सिमत जा रहे थे कि अंबरपेट के करीब 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। काउंसिल चेयरमैन सुखेंदर रेड्डी हादसे में महफूज रहे। तेलंगाना कानून साज काउंसिल की रुकन के कविता ने कहा कि अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन ATA कांग्रेस में पहली बार तेलंगाना पवेलियन कायम करना खुशी की बात है। कविता ने वाशिंगटन DC अमेरिका में एसोसिएशन की 17वीं कांग्रेस में हिस्सा लिया, तेलंगाना पवेलियन का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में तेलुगु आवाम को तेलंगाना हुकूमत के मुतारिफ करदा प्रोग्रामों से वाकिफ करवाने के लिए महासभा में तेलंगाना पवेलियन कायम करना फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से तेलंगाना पवेलियन के जरिए मुनक़िदा किए जाने वाले प्रोग्राम दीगर रियासतों के लिए एक तहरीक बन सकते हैं। उन्होंने एसोसिएशन के नुमाइंदों से कहा कि वो हर महासभा में तेलंगाना पवेलियन कायम करे। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि तेलुगु देशम पार्टी के बानी व मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला NT रामाराव ने एक ज़माने में हिंदुस्तान में तेलुगु अवाम को पहचान दिलाई थी और अब उनके वालिद और तेलंगाना के वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के आवाम को हिंदुस्तान में पहचान दिलाई है। इसी तरह इस तंजीम ने अमेरिका में तेलुगु आवाम को पहचान दिलाई है। उन्होंने महासभा के जरिए नई नस्लों को तेलुगु सकाफत से आगाह करने पर तंजीम के नुमाइंदों की कोशिशों की सिताइश की। उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका में तेलुगु लोग हिंदुस्तान के फख्र की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि अगर अमेरिका में तेलुगु एसोसिएशन खेलों और दीगर खेलों के लिए किसी भी शहर में हेडक्वार्टर कायम करें, तेलुगु सकाफत और रिवायत को फ़रोग देने के लिए म्यूजियम कायम करें तो ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। उन्होंने याद दिलाया कि मालदीव और मॉरिशस के तमाम तेलुगु लोगों ने तेलुगु ज़बान और सकाफत को बरकरार रखने के लिए रियासती हुकूमत और तेलुगु यूनिवर्सिटियों के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। అందరికీ నమస్కారం। ఆట 17వ మహాసభలకి మమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానించి మొట్టమొదటిసారి ఆటలో తెలంగాణ పెవిలియన్ని ఈసారి ఓపెన్ చేయడం అన్నది చాలా సంతోషం। అదేవిధంగా బతుకమ్మకు సంబంధించినటువంటి ప్రభావతి గారు రాసినటువంటి పుస్తకాన్ని కూడా ఇప్పుడు మనందరం ఇనాగ్రేట్ చేసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది। ఇక్కడ అమెరికాలో ఉండే మన తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా ఆట అంటే ఆంధ్ర తెలంగాణ అసోసియేషన్ అనుకుంటారు, ఆట అంటే అందరి తెలుగు అసోసియేషన్ అనుకుంటారు। ఏ విధంగా అయితే ఒకప్పుడు భారతదేశంలో తెలుగు వారికి NT రామారావు గారు గుర్తింపు తెచ్చారో, ఏ విధంగా భారతదేశంలో తెలంగాణకి KCR గారు గుర్తింపు తెచ్చారో, అదే విధంగా అమెరికాలో తెలుగు వారికి ఆట గుర్తింపును తీసుకొచ్చిందని చెప్పి నేను చాలా బలంగా నమ్ముతా ఉన్నాను। ఇటువంటి మహాసభలు పెట్టుకొని మన తెలుగు సంస్కృతిని ముందు తరాల వారికి అందించడానికి మీరు చేసేటటువంటి ప్రయత్నానికి చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ఇవాళ ఎమ్మెల్యేలు కానీ మినిస్టర్స్ కానీ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ కానీ చాలా మంది మరి సెలబ్రిటీస్ అంతా కూడా అక్కడి నుండి ఇక్కడికి వచ్చి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు। ఒకటే ఒక కారణం, మీ పనులలో మీరు బిజీగా ఉన్నా మీరు కన్నవారిని ఉన్న ఊరిని చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాలను అన్నిటి వదిలిపెట్టుకొని అమెరికాకు వచ్చి మీ మేధస్సుతోని స్వయంగా ఎదిగి కేవలం ఒక తెలుగు వాళ్ళమే కాదు భారతదేశం అంతా గర్వించేటటువంటి ఎత్తుకు ఇవాళ తెలుగువారు ఎదిగారు। దానికి మేమందరం కూడా సంతోషిస్తూ ఉంటాం। మీరు ఎదుగుతున్న తీరులో మీ యొక్క ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఎదగడానికి వారు మన సంస్కృతిని మర్చిపోకుండా ఈ కన్వెన్షన్స్ చేయడం చాలా సంతోషం। ఇక్కడ పెద్దవారు ఆట ఫౌండర్ మెంబర్ హనుమంత్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు। ఒక సూచన మాత్రం నేను వారికి చేయాలనుకుంటా ఉన్నాను। నిజానికి
ఆటాకు వచ్చేటప్పుడు నిన్న ఫ్లైట్లో నేను అనుకున్నా, అమెరికాకు ఆడవాళ్ళు ఇంతవరకు అధ్యక్షులు కాలేదు, ఆటాకు అయినరో లేదో అని అనుకున్నా. కానీ 20 ఏళ్ల కిందనే म्युनिसिपल कमिश्नर सिद्दीपेट रविंदर रेड्डी ने शहर के कई होटलों, बेकरियों और शॉपिंग मॉल्स का अचानक दौरा किया। इस दौरान म्युनिसिपल कमिश्नर ने होटलों और बेकरियों और शॉपिंग मॉल्स में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर की गई पाबंदियों पर होने वाली अमलआवरी का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने तमाम तिजारत पेशा अफराद पर जोर दिया कि कोई भी प्लास्टिक का इस्तेमाल न करे, अगर उसे इस्तेमाल किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान म्युनिसिपल कमिश्नर ने मुस्तफाबाद चौराहे पर वाक़ टिफिन सेंटर में टिफिन पार्सल सिस्टम को अचानक चेक किया गया। उन्होंने प्लास्टिक के कोर्स पर पाबंदी लगा दी गई है ताकि टिफिन सेंटर के सारिफीन को प्लास्टिक पर पाबंदी से आगाह किया जा सके। उन्होंने एक बैनर लगाने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि बराह करम क्या आप पार्सल के लिए स्टील के डब्बे और कैरी बैग्स ला सकते हैं, बराह करम सारिफीन हमारी मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि टाउन की दीगर दुकानों को भी इसी तरह तब्दीली करना चाहिए और सिद्दीपेट को प्लास्टिक से पाक शहर बनाने के लिए सबको ताउन करना चाहिए। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने प्लास्टिक पर आयद पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जुर्माने भी आयद किए और प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों को इंतबाह भी दिया। मल्लिकार्जुन, आलिया, सितेश और दीगर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जिला विकाराबाद के टांडोर में डीएसपी शिखर गौड़ की ज़ेर क़यादत ईद उल अज़हा के पेश नज़र टांडोर डीएसपी ऑफिस में मुस्लिम वेलफेयर और मजहबी रहनुमाओं के साथ एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर डीएसपी शिखर गौड़ ने इजलास में खिताब करते हुए बताया कि ईद उल अज़हा त्यौहार के पेश नज़र एक इज्तिमाई इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई भाइयों को माशरे में हम आहंगी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाए जाएं। हर फर्द को ईद उल अज़हा के मौके पर और उसके बाद आने वाले त्यौहारों में अपना अहम हिस्सा अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि टांडोर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस का ताउन करना हर एक की जिम्मेदारी है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो त्यौहारों या दीगर अवकात में सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक पर किसी भी गुमराह कुन और नामुनासिब पैगामात पर यकीन न करें। उन्होंने कहा कि पुरअमन फिजा को खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रोग्राम में सीआई राजेंद्र रेड्डी, राम बाबू और मुस्लिम भाइयों ने शिरकत की। ఫార్వర్డ్ చేస్తాను, నేను అలా చేయను, ఎవరికి కూడా అట్లాంటి చేయకూడదనే నేను మా గ్రూప్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఇమీడియట్ డిలీట్ చేయండి. మా ఇన్స్పెక్టర్ కూడా చాలాసార్లు వాళ్ళకు కాల్ చేసి చెప్పడము, ఇమీడియట్ డిలీట్ చేయించడం, ఫర్దర్గా లేకుండా చేయడము, ఇట్లాంటి అన్నీ కూడా చేస్తున్నాం. మా కానిస్టేబుల్స్లో కూడా ఈ ఇష్యూస్ నుంచి ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా మా దగ్గర పరేడ్ జరుగుతుంది సాటర్డే. వాళ్ళు టెక్నికల్గా ఫిట్ అయ్యడానికి ఇట్లాంటివి జరిగితే ఎట్లా దాన్ని ఇమీడియట్ తీసేయాలి. ఫేస్బుక్లో వచ్చిందనుకోండి, అది ఫేస్బుక్లోంచి ఇమీడియట్ పోదు. జనరల్గా ఫేస్బుక్లో ఎలా పోతుందంటే దానికి రిపోర్టింగ్ అంటారు. అంటే ఈ ఇష్యూ బాగలేదు, దీని మీద చాలామంది ఒక్కరే పోలీస్ నుంచి, అది ఎందుకు ఎక్కడో అమెరికాలో ఉంటుంది దాని సిస్టమ్, వాట్సాప్లో కానీ ఇది కానీ, అది మన దగ్గర ఇండియాలో ఉండదు. అది వాళ్ళు అంతా అమెరికాలో ఉంటుంది, దాన్ని సర్వర్స్ అంటారు. వాళ్ళు ఆ సర్వర్స్ అన్నీ కూడా రిపోర్టింగ్ ఎక్కువ చేయాలి. 10 మందో 20 మంది 100 మంది ఇది బాగలేదు, ఇది హార్ట్ఫుల్ ఉందని చేశారనుకోండి, అది కామన్గా తీసేస్తారు. అట్లా మనం ఏం చేయాలంటే చాలామంది దానిలో రిపోర్టింగ్లోకి వెళ్ళిపోయి దాన్ని రిపోర్ట్ చేయాలి. ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కొన్ని. ఆ టెక్నాలజీ కూడా మా వాళ్ళందరికీ నేర్పిస్తున్నాము. టెక్నికల్గా ఫిట్ కావడానికి కూడా చూస్తున్నాం. ఫిజికల్ ఫిట్నెసే కాదు, టెక్నికల్గా ఫిట్గా ఉండాలని మేము అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మీరు అందరూ మొహంలో కూడా చెహరా ఉండాలి, ఎప్పుడు ఏదో నవ్వుడు ఏమంటారు, స్మైల్, చెహరాలో ఎప్పుడు నవ్వు ఉండాలి. నవ్వు ఉంటే ఏంటంటే ఫేక్ స్మైల్ ఆల్సో గివ్స్ గుడ్ హార్మోన్స్ ఇన్ ద హెల్త్. బాడీలో గుడ్ హార్మోన్స్ వస్తాయి. ఒక్కసారి నువ్వు అనుకోకుండా నవ్వినా కానీ, ఇష్టం లేకపోయినా నవ్వునట్టు యాక్షన్ చేసినా కానీ నీకు గుడ్ హార్మోన్స్ బాడీలో రిలీజ్ అవుతాయి అన్నమాట. అది ఏం చేస్తుంది అంటే నీకు బీపీని, షుగర్ని, క్యాన్సర్ని కూడా కంట్రోల్. हजरत सैयद सिद्दी अंबर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शरीफ का इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। सालाना उर्स शरीफ तकारीब में अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की और गिलाफ चादर का नजराना पेश किया। उर्स तकारीब में अंबरपेट के अलावा दूर दराज मकामात के अकीदतमंदों ने भी शिरकत की। इस दौरान अंबरपेट के कई इलाकों से भी गिलाफ चादर का नजराना पेश किया गया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। ये बारगाह अंबर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जो है ना मुसलसल सालों से ये जो उर्स का मौके पर संदल माली गिलाफ वगैरह जो चलाया जा रहा है, ये यहाँ हर मज़हब के लोग आके यहाँ हज़रत अंबर शाह बाबा के रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान लेके जाते हैं। सीढ़ियों के पास से आप जाइए भाई, हम जो सारे हजरत लोग सीढ़ियों के पास खड़े हैं आप जाइए। इस चीज़ में शिरकत करके यहाँ फैज़ान हासिल करते हैं। आज अंबरपेट की कदीम और मशहूर दरगाह हज़रत सिद्दी अंबर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का महफिल चिरागा हैं। कल मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने दावा किया है कि हिंदुस्तान में आइंदा 30 ta 40 साल उनकी पार्टी का दौर होगा और वह हिंदुस्तान विश्वगुरु बनेगा। उन्होंने शहर हैदराबाद में बीजेपी के आमिला के इजलास के मौके पर सियासी करारदाद पेश की और कहा कि खानदानी सियासत, ज़ात परस्ती और खुशामद की सियासत अजीम गुनाह है। इसकी वजह से मुल्क कई बरसों से मुश्किलात का सामना कर रहा है। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बसवा शर्मा ने इन करारदादों की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाते हुए कहा कि अमित शाह ने बीजेपी की कामयाबी को इस सिलसिले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला का कहना था कि तेलंगाना और मगरबी बंगाल जैसी रियासतों में बीजेपी खानदानी हुक्मरानी का खात्मा करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी मगरबी बंगाल, ओडिशा और AP में बरसरे इख्तिदार आएगी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ ने आज सुबह हैदराबाद के चार मीनार की मंदिर का दौरा किया। हैदराबाद में बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में हिस्सा लेने वाले योगी ने आज सुबह इस मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर बीजेपी के लीडरान उनके साथ थे, जिन्होंने कहा कि कबल अज़ी भी आदित्यनाथ ने इस मंदिर में पूजा की थी। दरियासना पुलिस ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला के दौरे के पेश नज़र चार मीनार के खिलाफ सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे और बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात थे। बीजेपी लीडरों की जानिब से शहर में दौरा के लिए चार मीनार के इलाके का खास तौर से इंतखाब किए जाने की वजह से पुलिस ने इस इलाके में चौकसी इख्तियार की थी। जाफरानी जमात के लीडरों की बड़ी तादाद ने चार मीनार के दामन में वाक़ इस भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन किए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ साई चैतन्य की निगरानी में चार मीनार और उसके अतराफ सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए थे। बीजेपी के जलसे के पेश नज़र आज सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। वज़ीर आज़म मोदी के साथ पार्टी के लीडरों की बड़ी तादाद में इस जलसे में शिरकत की पेश नज़र पुलिस ने शहर के कई इलाकों में 2 बजे दिन से रात 10 बजे तक ट्रैफिक पर पाबंदी आयद कर दी है। दूसरी जानिब पैराडाइज परेड ग्राउंड और परेड ग्राउंड के करीब JBS मेट्रो स्टेशनों पर खिदमत शाम 5:30 बजे से रात 8 बजे तक मुअत्तल कर दी गई हैं। इस दौरान मेट्रो ट्रेनें इन स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी। मेट्रो रेल के MDN VS रेड्डी ने मुसाफिरों से कहा कि वो मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें। वाज़ेह किया गया है कि बाकी स्टेशनों पर खिदमत मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। नामालूम अफराद ने इंजीनियर के कत्ल के बाद उसकी लाश को जला डाला। यह वारदात तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के जनाराम में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहने वाले 25 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर नारायण रेड्डी ने 1 साल कबल मोहब्बत की शादी की थी। उनकी शादी लड़की के घर वालों को पसंद नहीं थी और लड़की के घर वाले शादी के बाद लड़की को जबरदस्ती अपने घर ले गए। तब से इन दोनों की मुलाकात खत्म हो गई, लेकिन बताया गया है कि लड़की चंद दिनों से नारायण रेड्डी से फोन पर गुफ्तगू करती थी। इस बात का इल्म घर वालों को हो गया और उन्होंने लड़की की काफी सरजनिश भी की। इस दौरान नारायण रेड्डी अचानक लापता हो गया और 30 जून को उसके घर वालों ने पुलिस स्टेशन में नारायण रेड्डी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। आज सुबह पुलिस को जनारम के जंगलात में जली हुई लाश बरामद हुई जो नारायण रेड्डी की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच का आगाज कर दिया है। लड़की के घर वालों पर इस कत्ल में शुबा जाहिर किया जा रहा है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासती तेलंगाना के बाज़ मकामात के साथ साथ शहर में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा चंद दिनों के दौरान शहर के
कई इलाकों में बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में महकमा की जानिब से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, करीम नगर, पिद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु और भद्रादरी, कुत्तागुड़म अजला में भी बारिश हो सकती है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलेंगे।